morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. So, uh, we'll be starting today with keyword research. But any questions, what we discussed yesterday, in case you guys have any questions, please let me know, or we proceed for today's keyword research part. We'll proceed, sir. Okay, fair enough. All right. So today we'll be discussing more about various tools which are available for keyword research. And to identify a particular keyword, we need to do certain research, and based on suggestions by these platform, probably we can understand what could be the best keyword for our business or for any other business as well. So there is a tool called Ubersuggest. Uh, so if you go to Google and type it Ubersuggest, so as you can see in Google, I just typed Ubersuggest and then I found one of a tool which is over here. So I opened it. This tool is of the prominent digital marketer Neil Patel. Okay, so on this tool, you can actually, this free version has some limitations, but still you will get to know a lot of details. So say for example, my business is leather jacket. I'm manufacturer of leather jacket or trader of leather jacket, but I want to understand prominent keywords which I can use for leather jacket, or which this tool suggests that what keywords we should opt for. So I'm just going to put that, and then we can look for the country where we want this particular I'm like, you can suggest your country, or we can suggest any country what is there. Okay, so we can look for India, and then can search for it. So this tool will give us some idea, and this will also give something about search volume. So what is search volume? Search volume is something that uh, number of times a particular keyword being searched in Google in a month. Sorry. So number of times a keyword being searched in Google, we call it search volume. So the moment I put leather jacket, you'll find there are some keywords that this particular tool has suggested. Okay. So leather jacket, which has search volume of 1,10,000. Okay. And then CPC is basically cost per click. If you want to advertise this particular keyword in Google on paid part, this is minimum cost that it will occur. Okay, then if you take down the mouse, so on mouse over you will be able to understand this. So leather jacket being searched 1,10,000 times a month. Leather jacket for men is 90,500. Leather jacket men, leather jacket for men. Similarly, you will find a lot of relevant keywords which are appearing over here, right? We can take out these keywords and then
go for it. Now, similarly, if someone searches on it, so what are the titles which appear? So we have already practiced to creation of a title and all, but you can see what kind of titles which appear. So women, women's collarless leather jacket shop, the world's largest, something like that, right? So these are the title, but at the same time, these are the keywords which are relevant. Now we can actually look for various ideas as well. Say, I'm like, these are the keywords that appear. Similarly, you can actually check various ideas which are there related to leather jacket. Okay. So these are keywords that we can actually copy it, put that in our notepad or Excel sheet and all. Now the last column, which talks about SEO difficulty. This means how difficult this particular keyword to achieve ranking in Google. So if it is in the range of 1 to 30, then it is quite easy. If it is between 30 to 50, okay, beyond 50 or above 50, it's difficult, and above 70, it's quite difficult. So these are some of the classifications which are there. So you can see few of the keywords are quite competitive in terms of keyword difficulty, right? So keyword difficulty plays, SEO difficulty actually plays, this particular keyword is quite difficult to achieve ranking in Google. This is what based on the kind of competition it is, right? Similarly, we can actually put in any URL as well, any website, any company's website, any other. Say for example, you want to check your competitors website, what are the keywords which this particular platform actually suggests. So you can also go back and check with the websites, but at the same time, here this tool also gives us various information about related keywords, about various questions that's being asked. So some of the keywords that will be coming with reference to suggested keywords, then based on that you have related keywords, then we have questions, what kind of questions being asked on various platforms which Google actually indexes, which leather jacket is best, can leather jacket be altered, how leather jacket is made. So this tool also helps us to create our FAQs, frequently asked questions related to a particular business, that we can generate and post it on our website as well. Now, what is the importance of frequently asked questions or these kind of questions, right? So if we are going to, because these are the questions which are being asked on digital platform, either on Quora or on Google or any other platform. So if we customize our FAQs and post it on our website, there is a possibility that the FAQ page will also start ranking in Google, and you'll get some kind of natural traffic, because organic traffic, because when people are actually searching for this, they want some solutions. So they are looking for some solutions, may not be transactional solution, that mean to say may not be buying a product, but they want to use it or take care of it, or what are the various components that can be taken care. So this also helps us to understand that these are something that can be utilized as content, as a part of content, and then we can actually implement it on the website. Similarly, you have prepositions, few more suggestions, few more things that people are looking for. So you get polish for leather jacket, styles with leather jacket, outfits. So I'm like, this also gives you some prepositions, then followed by that there are some comparisons as well, comparative keywords which will also come over here, right? So this particular tool actually gives you more detail about various versions of, it's not only direct what people are searching for, it also gives you some related keywords, some questions which are being asked, and at the same time you will also be able to know various keywords for any website that you want to target.
से अगर आप किसी एक वेबसाइट मतलब आप अपने लिए कीवर्ड निकालना चाहते हैं एक अलग बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई और वेबसाइट है जिसके लिए जो कौन कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है, एंड इफ ही इज और दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज योर कॉम्पिटिटर, you can actually go back and check what are the keywords that that particular website is using. ओके तो अगर हम लेदर जैकेट की बात कर रहे हैं तो लेदर जैकेट से रिलेटेड अगर हम गूगल में कुछ सर्च कर लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सी लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल. India Mart is a business directory, so I'm not taking that. Probably this particular website is into it, True Trident. Right. So we'll try to see what are the keywords that this particular website is using. Put it search by keyword by that we have already done. Next is search by website. Right. So this particular keyword, True Trident Leather, is using these keywords for their SEO purpose or for their SEO purposes, right? So you can actually understand and identify a website, what are the keywords that a particular website is using. So this exercise is just a basic exercise, and based on this, we need to actually shortlist all these keywords and put that in the Excel sheet, right? When your website is very small, the way that we made it on Wix, it's a very small website, 4 or 5 pages website that we made it. So probably this exercise looks not very appropriate. But if your website is quite lengthy, 30 page, 40 page, 50 page, or 100 page website, then you have to do all these exercises, and then you have to understand which keyword is appropriate for which kind of what kind of websites or web pages. Okay. So this is a brief about using Ubersuggest. So it's not only just these keyword, these features that this particular keyword is having, this particular tool is having, but for keyword research, I just try to put it this way. Okay, so similarly, you can actually check for keywords by traffic. So which keyword will bring what kind of traffic, that also you can see. So here if you see, because we have put in URL, हमने चूंकि वेबसाइट का नाम डाला है, वेबसाइट का URL डाला है, तो कौन सी वेबसाइट के किस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और किस पोजीशन पे आ रहा है नॉर्मली, ये भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है. तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कीवर्ड अगर हम पुट कर देंगे जो हम लोगों ने पहले डाला हुआ था, ओके, और उसके बाद अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट पे कौन से कीवर्ड से रिलेटेड हमको, दिस इज अगेन टेकिंग मी बैक टू दैट. तो ना सिर्फ ये, बट इसके साथ साथ आप उसी तरह के सिमिलर वेबसाइट्स, यानी यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड some of similar websites which may be competing with your website or your competitors website, कि अगर आपको एक वेबसाइट का नाम पता है तो उसके साथ साथ और कौन कौन सी वेबसाइट जो गूगल पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसके लिए आप डिटेल निकाल सकते हो. जैसे आप देख सकते हैं कि हमने ट्रू ट्राइडेंट लेदर की बात की, तो वहां पे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर्स इंडिया है, लेदरमैन फैशन है, और भी बहुत सारे और भी कुछ डोमेन्स हैं जिसका कि आ रहा है, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रू ट्राइडेंट लेदर भी इसको कंपेयर कर रहे हैं, और फिर इसको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन सी वेबसाइट पे कॉमन कीवर्ड्स कितने हैं और कितना ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आ रहा है, और उसके बैकलिंक्स क्या हैं. बैकलिंक्स के बारे में जैसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखा था कि कितने ज्यादा वेबसाइट से आप लिंक बैक कर रहे हैं, उसके बारे में ये डिटेल है, राइट. तो ये एक ऐसा टूल है जो 7 डेज तक तो फ्री है, बट इफ यू वांट टू टेक इट, हम लाइक नॉर्मली आप अगर साइन अप कर लेते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, देन स्टिल यू कैन मेंटेन इट फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम. ओके, बट paid version of this particular tool is very very useful for a digital marketer to understand it
एंड इन डेप्थ स्टडी के लिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है। ओके, तो उसी तरह से हम ये पर्टिकुलर टूल हमको कंटेंट आइडियाज भी देता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड अगर हम कोई आइडिया लेना चाह रहे हैं तो हमारे लिए क्या वहां पे किस तरह का कंटेंट वहां पे अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही लेदर जैकेट की हम बात कर रहे हैं, so you can actually shortlist various keywords what this particular platform is giving. Similarly, there are few more keyword tools which are available in the market that has different feature. This particular tool has different feature, other tools are having different feature. तो ये tool हमारे लिए इस फॉर्मेट में ज्यादा यूजफुल है कि हमको ये कीवर्ड सजेशन भी देता है, प्लस सर्च वॉल्यूम भी देता है, और उसकी डिफिकल्टी के बारे में भी, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, वो कीवर्ड कितना डिफिकल्ट होगा किसी चीज को सर्च करने के लिए, वो हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई दूसरा कीवर्ड अगर हम ले लें, मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कंपनी यहाँ पे हमने यूज किया है। सॉरी, actually I have already used few times, तो इसलिए ये हमको सजेशन नहीं दे रहा है, एंड आई हैव नॉट साइंड इन। बट अगर आप जिस इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सर्च कर रहे हैं, सो दिस गिव्स यू एन ऑप्शन टू क्रिएट थ्री वेरिएंट ऑफ industry, three variant of topic you can actually search for in one particular day in a free trial. ओके, उसी तरह से मैं इस टूल के बाद, तो ये बेसिक है कि यूवर सजेस्ट आपको किस तरह से आपके लिए ये होता है। बट अगर मैं इसी चीज को अगर हम इनकॉग्निटो विंडो में अगर मैं ओपन करूं तो मैं फिर इसको यूज कर सकता हूं फॉर सम टाइम। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकट्स बाय विच वी कैन यूज अ पर्टिकुलर टूल, by which we can use this tool. On top of it, there is another tool that we'll be discussing about. Just a minute. So this is another tool which we call it keyword.io. Keyword.io. Okay, so this tool actually gives some detailed list of keywords related to the kind of keywords that we search for. But here there is no limitation in terms of how many keywords that we can search for. Okay, but thing is, like, it only gives ideas. This particular platform doesn't gives any search volume detail. Say for example, I search for leather jacket in that Uber suggest tool, and here you can actually look for same keyword over here. You will get lot of keywords suggested by this particular platform. Okay, now out of this you can actually choose appropriate keyword, and whatever the keywords that you'll be choosing from the left side, it will come in the right side, and then you can either copy it in your notepad, or you can copy it in your Excel sheet, and then can do rest of the things, right? A black leather jacket, a brown leather jacket probably may not be of our use, so we can search for best leather jacket. Now, so first and foremost thing, what I will suggest, that first we can identify a few of the relevant keywords over here, and then try to see what are the kind of search volume that Google based on Uber suggest we can actually identify, uska search volume hum nikal sakte hain. Okay, similarly you can go for various branded or best leather jacket brands in India. Likewise, I'm biker leather jacket or
kind of thing. Okay, brown leather jacket, blue leather jacket for men. So you can identify various keywords what is coming over here. So may not be 100% of the keywords are of our use. You can see that few of questions are also being asked over here, right? उसी तरह से आपके पास ये टूल आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड क्या सर्च हो रहा है, दिस गिव्स यू एन आइडिया टू अंडरस्टैंड what are the related keywords that are being searched on any other platform like YouTube पे है या फिर Amazon पे क्या सर्च हो रहा है, okay, Bing पे क्या सर्च हो रहा है. So all these things you can identify. Now the importance of this tool is ये इतना comprehensive detail देता है कि आपको एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, या जब अगर आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सटेंसिव लिस्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है. तो आप यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, राइट? जैसे leather jacket for girl, leather jacket for kids, leather jacket for ladies, for men, for women. Okay, A B C ये क्यों आ रहा है कि सर्च करते हुए अगर कुछ आ जाता है तो आ जाता है, बट अदरवाइज आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. यू कैन मॉडिफाई इट. इवन इफ आई चूज फॉर a leather jacket for ladies, I can in my final list I can actually modify this and then keep it, right? उसी तरह से यहाँ पे एक और बहुत ही important tool है जो कि आपको मतलब ये सारे keywords के अंदर, ये सारे tools के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, but at the same time this also gives an option for long tail keywords. Long tail keywords किसको कहते हैं? There are three kind of keywords: short tail, mid tail and long tail. शॉर्ट टेल कहते हैं बहुत ही छोटा कीवर्ड, जैसे लेदर जैकेट है उसको शॉर्ट टेल कहते हैं. अगर लेदर जैकेट फॉर मेन बोले तो वो मिड टेल हो गया. लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स फॉर मेन इन दिल्ली, इन हैदराबाद, तो उस तरह का जो कीवर्ड हो जाता है वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है. ओके, तो अगर हम यहाँ पे किसी और चीज से रिलेटेड अगर हम सर्च कर रहे हैं, एंड देन we are looking for long tail keyword, तो आप यहाँ पे देखिए about us content for web development company. तो probably ये आपके इंटरेस्ट का है नहीं है, तो हमको इसमें से शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमारी कंपनी हमारे मतलब का है, राइट? जैसे बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, इन हैदराबाद, इन लोकेशन जो भी आ जाता है तो एक लोकेशन वाला हो जाता है. ओके, then you have New York, you have world best WordPress theme web development company, WordPress theme for web development company. Okay, Chandigarh web development company, उसी तरह से आपका cloud based web development company. So this content for web development company. Okay, Dallas web development company. तो आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आपको किस तरह की कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं. ओके, उसी तरह से जैसे ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट कंपनी फॉर सिडनी या इन सूरत, इन अहमदाबाद, तो हमारे लिए अगर हम हैदराबाद बेस्ड हैं तो हम हैदराबाद बेस्ड कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस पर्टिकुलर टूल आल्सो गिव्स यू आइडिया अबाउट हम कौन सी कीवर्ड को यूज कर सकते हैं अपने पर्पस पे, राइट? तो अब जब लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसका सर्च रिजल्ट भी गूगल में देख लें कि भाई वो कीवर्ड्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या हम जो कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किया है उसका सर्च कितना है. और इन चीजों के साथ साथ ये शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगर हमने मान ले कि 8, 10 या 15 जो भी हमने कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे हमने इससे पहले लेदर जैकेट के लिए किया, उन चीजों को फिर हम गूगल का जो टूल है उसको भी हम यूज कर सकते हैं. बट गूगल के टूल को यूज करने, गूगल का एक और कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड सजेशन टूल है, राइट? जो कि अनलेस अनटिल आप उसका एड अकाउंट सेटअप नहीं करते तब तक आप उस टूल को नहीं यूज कर पाते हैं. तो एड अकाउंट सेटअप करने के लिए क्या है कि वहां पे पूरा का पूरा सेटअप करने के बाद आपको कार्ड का या पेमेंट डिटेल आपको ऐड करना पड़ता है. उसके बाद जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप उस टूल को यूज कर पाते हैं. लेकिन उस टूल को यूज करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, सो दैट हमारे पास वेरियस टूल का कंपैरिजन हो जाता है कि भाई हम
क्या क्या कर सकते हैं। अब मान ले कि आप गूगल ऐड के अंदर अभी एक्टिवेट नहीं है और आपने अपना पेमेंट डिटेल नहीं ऐड किया है, जैसे हम लोग फेसबुक के ऐड को ट्राई किए, हम लोगों ने लिंक्डइन के ऐड को ट्राई किया कि हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट किए टिल लास्ट। वेयरएज गूगल के साथ ये चैलेंज है कि अनलेस अनटिल आप पेमेंट डिटेल्स आप ऐड नहीं करते, आपका ऐड अकाउंट सेट नहीं होता और वहां पे आप कीवर्ड के सजेशंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो टिल दैट टाइम वी कैन यूज मेनी कीवर्ड्स लाइक दिस। मैंने अभी आपको उबर सजेस्ट बताया, मैंने आपको अभी keyword.io बताया, उसी तरह से एक और है keywordtool.io। ये टूल भी सिमिलर काइंड ऑफ टूल है जैसे अभी keyword.io का मैंने बताया, कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशंस आपको मिल जाते हैं, बट इसके अंदर भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने कीवर्ड्स को आप सर्च कर पाएंगे। बट फ्री वर्जन के अंदर चैलेंज ये है कि आपको बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स देता है। ओके, तो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं लेदर जैकेट मैंने सर्च किया, leather jacket for women, which is on a trend of 83%, right? Baki, because this is free tool, so it is not giving search volume for every keyword. In comparison, Uber suggest is giving search volume for whatever the keywords that it is suggesting for. Okay, but उसके अंदर लिमिटेशन है, Uber suggest के अंदर लिमिटेशन है कि आप लिमिटेड सर्च ही एक दिन में कर सकते हैं। 3 सर्च आप एक दिन में कर सकते हैं। 3 सर्च का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ 3 कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, मतलब एक कीवर्ड हमारा वेब डेवलपमेंट कंपनी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स है आप वहां पे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर 3 डिफरेंट वर्टिकल्स यू कैन एक्चुअली यूज इन वन पर्टिकुलर डे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे यूज करना पड़ता है। वेयर एज दिस पर्टिकुलर टूल गिव्स यू विदाउट लिमिटेशन, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप प्रो वर्जन में जाते हैं तब तो सारा का सारा सर्च वॉल्यूम दे देता है, बट मोर और लेस इन नॉर्मल वर्जन इट गिव्स सजेशन। और ये जो आप देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, ये जितने लिस्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इन द सेंस मोर सर्च वॉल्यूम वाले, ये जो ज्यादा कीवर्ड्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं या पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, वो ऊपर हैं, उसके बाद उसी हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली पीपल आर सर्चिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और प्रीपोजिशंस भी आपको मिल जाते हैं कि भाई उसके आसपास जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, लेदर जैकेट ऑन सेल, लेदर जैकेट ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड ऑल। सो मोर और लेस अगर हम फ्री टूल को यूज करने की बात करें तो वी कैन एक्चुअली गो विद कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 टूल्स एंड देन कैन फाइनलाइज अ फाइनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स व्हाट टू बी यूज्ड फॉर आवर इंडस्ट्री। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 टूल्स को यूज कर सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स। KW फाइंडर एक अलग टूल है, उसी तरह से Ahref करके एक अलग टूल है, KW फाइंडर भी, उसका भी एक अलग एडवांटेज है। तो अगर हम KW, तो इस तरह से हमको क्या करना है, हमको अपने कीवर्ड लिस्ट को फाइनलाइज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट फॉर मेन, लेदर जैकेट फॉर वुमेन, ये सारी चीजें हुई, बट एट द सेम टाइम लेदर जैकेट ऑन सेल, राइट। उसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ अगर आप चले जाएं तो आपको दिख के आता है लेदर जैकेट ऑन सेल फॉर मेन, राइट। ये मिंत्रा का है, अमेजॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है। ओके, लेदर जैकेट एंड कोट, लेदर जैकेट अराउंड मी। ओके, ये लेदर जैकेट से रिलेटेड है। अगर हम इसका मैन्युफैक्चरर्स की बात अगर हम कर लें, तो ये हमारे प्रीपोजिशन में आ रहा है, लेकिन कीवर्ड सजेस्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जो लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स इन यूएसए, इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन कानपुर, right near me, in India, Agra, Ludhiana, so whatever the prominent locations which are there in India for leather jackets or leather product manufacturing, वो locations आ गया। उसी तरह से leather jacket makers, manufacturers के साथ साथ एक combination आ गया makers का, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, leather jacket makers in Australia, right, leather jacket branded company in Bangladesh, okay, leather jacket company Canada. So there are various cheap leather jacket manufacturers, right, leather jacket manufacturers in, तो ये आपको कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देता है। okay.
अब आप जितना ज्यादा आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे उतना ज्यादा वेरिएंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग लेदर जैकेट, लार्ज लेदर जैकेट, राइट, मेकर नियर मी, लेदर जैकेट मैन्युफैक्चर के साथ साथ फैक्ट्री भी दे रहा है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रिलेवेंट कीवर्ड्स। ओके, उसी तरह से अगर हम लेदर जैकेट ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स से रिलेटेड भी हम निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस टूल विल ओनली गिव यू आइडिया बेस्ड ऑन योर इनपुट। सो आपका इनपुट कितना अप्रोप्रिएट है उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि गूगल पे हम जाके सर्च करें, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करने के बाद गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है। तो गूगल का नॉर्मल सजेशन हमको कहाँ मिल जाता है, जब google.com पे जाके या .in पे जाके आप सर्च करते हैं तो नीचे जब जाते हैं गूगल पेज पे, जब आप नीचे चले जाते हैं तो वहां पे आपको गूगल सजेशंस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल पे सर्च किया है, मुमकिन है आप लोगों को दिख रहा होगा, गूगल का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को या? ठीक है, तो अब आप जब कोई भी कीवर्ड हम ऊपर सर्च कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो आप सबसे नीचे आ जाइएगा जहां पे आपको कुछ सजेशंस दिख रहे हैं। लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, इन दिल्ली, लेदर जैकेट इन हैदराबाद, लेदर बेस्ट लेदर जैकेट स्टोर्स इन हैदराबाद। सो इसमें से भी हो सकता है कि कुछ कीवर्ड्स आपके मतलब का हो। तो ये 3-4 टूल के एक्सरसाइज के बाद आप एक फाइनल लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड फाइनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आप निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेस्ट लेदर जैकेट स्टोर्स इन हैदराबाद या लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स इन हैदराबाद अगर मैं सर्च कर लेता हूं, तो अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड और कुछ कीवर्ड सजेशन और दे देता है गूगल, और कुछ कीवर्ड सजेशन देता है, राइट। होलसेल विंटर लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स इन हैदराबाद, जैकेट होलसेल मार्केट इन हैदराबाद, जैकेट शोरूम, बेस्ट लेदर जैकेट स्टोर्स इन हैदराबाद, राइट। तो अब इससे रिलेटेड आपको कुछ और कीवर्ड सजेशन मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, ये जितने कीवर्ड्स आपको लगते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो सपोर्टेड बाय डेटा, ठीक है, सपोर्टेड बाय डेटा का मतलब ये है कि उसका कॉम्पिटिटिवनेस हम देख लें, उसका सर्च वॉल्यूम हम निकाल लें, और दूसरी चीज ये है कि जब गूगल में हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, लेदर जैकेट्स इन हैदराबाद अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट का जो नंबर है वो कैसा आ रहा है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ एक्सेल शीट। हम एक एक्सेल शीट बना सकते हैं और जिसके ऊपर फिर हम लोग काम करेंगे कि भाई किस तरह के कीवर्ड्स हमको चूज करने चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आप लोगों के सामने एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं और इसके अंदर हम लोगों को क्या वेरिएंट यूज करना है, सबसे पहली चीज ये है कि हमें सीरियल नंबर, देन कीवर्ड्स, उसके बाद हमारा सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमें कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाता है तो उसके बाद हमको गूगल सर्च रिजल्ट्स, ये ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी डिजिटल मार्केटर अपने कीवर्ड एनालिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है। अब मान ले कि लेदर जैकेट से रिलेटेड हमने कीवर्ड्स निकाला, लेदर जैकेट फॉर मेन, लेदर जैकेट फॉर वुमेन, लेदर जैकेट एक आया, ओके। आपने फॉर एग्जांपल आपने ये कीवर्ड्स निकाल लिया, अब इसका सर्च वॉल्यूम हमको कहां से मिलेगा? इसके सर्च वॉल्यूम के लिए आसान सा टूल हमारे लिए उबर सजेस्ट का टूल है जहां से हम निकाल सकते हैं, ओके।
इसी तरह से इस लिस्ट को हमको बहुत ज्यादा डिटेल करना है। अब जब कीवर्ड डिफिकल्टी आ जाता है, फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट, ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड डिफिकल्टी के अंदर फॉर एग्जांपल 85% एंड अबव है। ओके, मतलब इसका ये हुआ कि ये ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वेरी टफ टू अचीव रैंकिंग बाय लेदर जैकेट। तो जो कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हैं, हद से ज्यादा डिफिकल्ट रैंकिंग के अंदर बहुत हायर रेंज पे है, तो उस तरह के कीवर्ड को हमें इनिशियली इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज योर होल एनर्जी एंड एफर्ट्स विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड एंड स्टिल you are not very sure whether you will be able to achieve ranking because of that or not. तो आपको SEO पर्पस के लिए मॉडरेट कीवर्ड डिफिकल्टी या लेस कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ आपको चलना होगा, राइट? सो द कीवर्ड्स व्हिच आर in difficulty parameter, if a keyword is coming in between ranging up to 50, तो हम उस तरह के कीवर्ड्स को हम ले सकते हैं। ओके, बियॉन्ड दैट हम इग्नोर कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर एज एन एसईओ, बिकॉज हमारा टॉपिक आज का एसईओ है, इसलिए एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च है, तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के लिए, चाहे वो पेड एड है या एसईओ है, आपको पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा अप्रोप्रिएट कीवर्ड हो सकता है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। और ये कीवर्ड लिस्ट आपको 2, 4, 5, 10 कीवर्ड नहीं, आपको कम से कम 25 से 30 कीवर्ड आपको निकालना है, 25 to 30 कीवर्ड्स आपको निकालना है। उस बीच में से आपको ये शॉर्टिंग करते हुए आप अप्रोप्रिएटली एक 10 to 15 कीवर्ड्स तक आप पहुंचेंगे। अगर आपकी वेबसाइट बहुत लेंदी है और बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके अंदर एडेड हैं, तो आपको ये लिस्ट, आपको इनिशियल लिस्ट जो बनाना है वो 50-60 के आसपास या समटाइम्स 100 तक आपको लिस्ट बनाना है। और फिर उसका सर्च वॉल्यूम आपको आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करना है, और गूगल सर्च रिजल्ट में इस पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या ये डिफिकल्टी यानी सर्च रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल सर्च रिजल्ट के बारे में हमने कहा कि लेदर जैकेट अगर हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो क्या डेटा दे रहा है गूगल, तो हमको ये निकाल लेना है अबाउट दिस मच ऑफ रिजल्ट। So we'll be just taking it up and then we'll be putting that particular search volume over here. Okay, Google search result, right? तो Google search result का इसी तरह से एक एक कीवर्ड का हम सर्च वॉल्यूम निकालेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी निकालेंगे और Google search result निकालेंगे। फिर डेटा सॉर्टिंग के साथ आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए कि जो कीवर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चल जाएगा। बट एट द सेम टाइम कीवर्ड डिफिकल्टी भी एक पैरामीटर है कि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने एसईओ के लिए चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं। सो एज आई सजेस्टेड, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड एंड फास्ट, कोई रूल नहीं है कि आप डिफिकल्ट कीवर्ड्स को आप नहीं चुने, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन सजेशन ये रहता है कि आप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कीवर्ड को इसलिए आप शुरू में आप इग्नोर करें, वजह उसकी ये है कि it requires lot of efforts, energy and time to get ranking by that particular keyword in first page of Google। तो इसलिए आप उस तरह के कीवर्ड्स को अवॉइड करते हुए मॉडरेट कीवर्ड को आप परफॉर्म कर लीजिए, बिकॉज उसका सर्च वॉल्यूम और उसका ट्रैफिक एस्टिमेट भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर आप लिस्ट कर रहे हैं तो तकरीबन कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे पहुंच सकता है, राइट? सो ये कुछ कीवर्ड प्रोसेस है, बट दिस हैज टू बी डन फॉर एवरी वेबसाइट। जो भी आप वेबसाइट अपना हो या किसी कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको ये पूरा एक्सटेंसिव एक्टिविटी करना ही करना है। जितना ज्यादा आपका रिसर्च स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट कीवर्ड आप चूज कर पाएंगे और फिर गूगल के अंदर आपकी लिस्टिंग आ पाएगी। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब जैसे ये कीवर्ड आपका आइडेंटिफाई हो गया तो आपको क्या करना है नेक्स्ट। जैसे कल हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ के अंदर हम लोगों ने देखा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो ये कीवर्ड जब आपका निकल आएगा तो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बनाना आपके लिए आसान होगा। हम लोगों ने एक रफली प्रैक्टिस किया कि आप अपना टाइटल इस तरह से बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन इस तरह से बना लीजिए, प्रोसेस वही है।
बट सबसे पहली चीज ये है कि हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा कीवर्ड किस यूआरएल के लिए हम यूज करना चाहते हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। देन फॉलोड बाय दैट हमको टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद हमको हेडर टैग्स के ऊपर बनाना है। तो हमको हेडर टैग भी जिस पेज का जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड ही हमको हेडर टैग बनाना है। H1 टैग हो या H2 टैग हो, वो हमको उसी से रिलेटेड बनाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद का इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि भाई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में रेलेवेंट और कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये दो चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम सेम कीवर्ड बीइंग रिपीटेड इन एवरी 100 वर्ड्स पैराग्राफ। ठीक है, अब लेदर जैकेट आप यूज कर रहे हैं तो एज इज लेदर जैकेट कैन बी यूज 2 times in 100 words paragraph। लेदर जैकेट फॉर मेन या बेस्ट लेदर जैकेट एक अलग चीज है। लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर्स आप यूज कर सकते हैं, मेकर्स यूज कर सकते हैं, ब्लैक लेदर जैकेट आप यूज कर सकते हैं। तो उसी चीज का वेरिएशंस हो सकता है। ब्लैक लेदर जैकेट में एक रैंडम कीवर्ड आ गया इसलिए मैंने बोला, बट ऐसा नहीं है कि ब्लैक ही सिर्फ हमको यूज करना है, ब्लू ही यूज करना है, बट उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन कीवर्ड्स को जब हम निकालेंगे तभी हम इन कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट में, सो दैट हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड हो। फिर जब आप पेजेस बना रहे हैं, जब अपने वेबसाइट के इंटरनल पेजेस बना रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि ये कीवर्ड्स हमारे यूआरएल के लिंक में भी हमारा ये कीवर्ड आए तो बेहतर है। ओके, तो ये 4-5 चीजें हैं जो अनलेस अनटिल आपका कीवर्ड लिस्ट फाइनल नहीं होगा तब तक आप एसईओ के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारे पास आता है कि हम sitemap.xml को हम गूगल में हम सबमिट करें और फिर हमारा जो वेबसाइट है उसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम सबमिट करें। यानी गूगल, फिर साइट को गूगल वेरीफाई भी करना होता है। वेरिफिकेशन कोड मुमकिन है आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो कि गूगल वेरिफिकेशन कोड हमको जनरेट करना पड़ता है अपने डोमेन के लिए, अपनी साइट के लिए, फिर उसको वेबसाइट के कोडिंग में इंसर्ट करना पड़ता है, फिर वेरीफाई करना पड़ता है गूगल पे। वंस इट गेट्स वेरीफाइड तो गूगल आपके ट्रैफिक को कैप्चर करना शुरू कर देता है। राइट, तो ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक का एक स्टेप है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड था और कैसे हम इस चीज को अपने इंडस्ट्री के लिए आइडेंटिफाई करके शॉर्टलिस्ट करके हम बना सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है जो कि आप लोग आज दिन में अगर टाइम मिल जाता है तो आप लोग इस चीज को कर लीजिए कि अभी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों ने जो भी विक्स पे साइट बनाया है, आप लोगों ने जो भी विक्स पे साइट बनाया है उससे रिलेटेड आपको एक 20-20 कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है, 20-20 कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है इन दिस स्टाइल। उसका सर्च वॉल्यूम भी निकालना है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपको निकालना है और गूगल सर्च रिजल्ट्स भी आपको आइडेंटिफाई करना है। या Fatim, you are saying something? No, sir. Okay. तो इस तरह से आपको अपने एक्सरसाइज करना है। कोई वेब डेवलपमेंट में है, कोई हिजाब एक्सेसरीज से हैं, कोई केक बना रहे हैं, कोई ट्रैवल बिजनेस के अंदर हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 20 कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर बिजनेस और फिर ये सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च रिजल्ट का ये आपको आइडेंटिफाई करके आपको ये बनाना है। ओके, सर्च वॉल्यूम आपको उबर सजेस्ट से मिल जाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपको वहां से मिल जाएगा, बट एडिशनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आपको कहां से मिल जाता है अगर आप एक्सटेंसिव कर रहे हैं तो उसके अंदर KW keyword.io है या keywordtool.io है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। और ये गूगल सर्च रिजल्ट्स कहां से निकालना है, गूगल पे जाके आप वो कीवर्ड सर्च कीजिएगा, जो सबसे ऊपर जो रेलेवेंट डेटा आता है अबाउट सो एंड सो फेच्ड इन सो एंड सो सेकंड, तो वो जो डेटा है उसको आप यहाँ पे फेच करके और फिर इस पूरी चीज को आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप क्रिएट करके उसके बाद कल हम उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सा कीवर्ड डिफाइन करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए। फिर उस बेसिस पे हमको अपने एक एक पेज के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन हमें क्रिएट करना है, H1 टैग क्रिएट करना है,
क्योंकि आप ऑलरेडी पेज बना चुके हैं, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस आ जाएगा H1 टैग। बट अगर आप लोग कर सकते हैं, इफ यू गेट टाइम, आई विल सजेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये करने में शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड, या आप जो जो भी आपने पेजेस बनाए हैं अपने वेबसाइट पे, 5 या 6 पेजेस जो भी हैं, उस पर्टिकुलर पेज के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। तो आप देख लीजिए कि ये जो कीवर्ड आपने चूज किया है उससे मिलता जुलता है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने का है, मॉडिफाई कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हर पेज के लिए H1 टैग, हेडर टैग जो है, हेडर टैग आप क्रिएट करके उसको इंसर्ट कर लीजिए। नाउ विक्स की साइट पे हेडलाइंस को इंसर्ट करने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि जैसे ही आप टेक्स्ट आप कहीं पे इंसर्ट करने जाते हैं तो वहां पे हेडलाइन लिख के आ जाता है, तो 1 to 6 रेंज में। तो H1 और H2 टैग अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो वो आप क्रिएट करके इंसर्ट कर लीजिए। और फिर कुछ कंटेंट के ऊपर काम कर लीजिए कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें ये कीवर्ड्स अगर इंसर्ट हो जाते हैं। बट जैसा मैं पहले भी बोला कि हम लोगों को अपनी पेज के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा एसईओ में। तो अगर आप थोड़ा डिटेल लिखते हैं, 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स तक अगर आप लिख लेते हैं एक एक सर्विसेज को लेके या एक एक कैटेगरी को लेके, तो आपका इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप कंटेंट भी लिख लें, आप सारी चीजें कर लें एक दिन में, बट एटलीस्ट कीवर्ड रिसर्च हो जाता है, आपका H1 और H2 टैग क्रिएट हो जाता है, वो आप अपने अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट कर दें। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं कि H1 और H2 को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों में से तकरीबन आप लोगों में सबके सब ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने क्रिएट किया है ना अपनी अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिए? एवरीवन हैज क्रिएटेड इट, राइट? राइट। तो अब H1 टैग के लिए क्या करना है, जो आपने टाइटल बनाया है उसी में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर लीजिए तो वो आपका H1 टैग हो जाता है। और जो डिस्क्रिप्शन बनाया है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, एक सेंटेंस फ्रेमिंग कर लीजिए थोड़ा सा, जो उतना ज्यादा डिटेल भी ना हो, लेकिन हाँ चलो भाई थोड़ा सा छोटा सा क्रिस्प टाइप का। तो आपका जो टाइटल टैग है उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपने कीवर्ड भी डाला हुआ है और भी चीजें आपने किया हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर लिए आप तो वो आपका H1 टैग हो जाता। और डिस्क्रिप्शन, जो उसी पेज का जो डिस्क्रिप्शन आपने बनाया हुआ है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए तो आपका H2 टैग हो जाता। तो ऑलरेडी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है तो। और फिर H1 और H2 टैग क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट पे उसको इंसर्ट कर लीजिए। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज आप लोग कर लें, कल हम लोग क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा एसईओ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंस्टेंटली गूगल एड, पेड एड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ओके, इज दैट ओके फॉर यू गाइस? ये इसका मैं स्क्रीनशॉट उठा के आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, सो दैट आप लोगों को आसानी होगी इस चीज के लिए। All right guys, so दिस इज अ ब्रीफ। और मैं ये तीनों जो कीवर्ड सजेशन वाले जो टूल हैं उसका भी मैं लिंक आपको गूगल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पोस्ट कर देता हूँ, एंड देन यू गाइस कैन एक्चुअली यूज इट। ओके, होप दैट इज फाइन फॉर टुडे। या अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एंड देन आई विल बी हैप्पी टू आंसर इन केस ऑफ एनीथिंग। So I feel there are no questions for today. So let's see you tomorrow, guys. Okay.
Yes, sir. All right. Take care. Have a good day. Take care. Have a good day. Bye. Thank you.